Okay, Ji, we have done the questions up till here, the inversely proportional. If you want me, shall I explain it to you again? Because in the next paper, this question is going to happen again. This is going to come again. And that time I'm not going to, describe it. I'm going to, or explain it. I'm going to ask you to do it. That will be the real test. लास्ट क्लास में हमने इसको किया था, बताइए कैसे होता है ये, कैसे करते हैं जी? What are two types of proportionality? लिखा होगा इसके ऊपर, direct proportion and inverse proportion. What is the difference? Direct proportion means if one quantity increases, the other also increases. This is directly proportional. Why can't you remember that? It's very simple. Direct मतलब direct, both are direct. That is one quantity. बोलो मेरे साथ, बोला करो, बोलो. When one quantity, बेटा आप लोग इस तरह टूट टूट के बोल रहे हैं, पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आया कि एक सिंक नहीं हो पाई है क्लास. कुछ लोग इंतज़ार करते रहते हैं, कुछ लोग जवाब देंगे तो फिर कुछ लोग उसको जल्दी जल्दी रिपीट करके इक्वइंग कर देंगे कि हाँ मैंने किया. आपका अपना जहन नहीं है, आप खुद इस्तेमाल करें. अच्छा नहीं लग रहा, फर्स्ट लेसन है, थोड़ा इसी में चित्रौल हो जाए बिल्कुल अच्छा ही लगता. थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव करके एक क्लास में, एक क्लास है ना, एक ही उम्र के बच्चे एक क्लास में, तो एक साथ बोलने की कोशिश कर, कोरस में बोले, समझे इस चीज़ को कि इंपॉर्टेंट है. हाँ भाई, हाँ कितनी तरह के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटीज आर देयर आर टू. व्हाट आर द नेम्स? एंड इनवर्स प्रोपोर्शन. साथ चलने की कोशिश करो बेटा, तेज नहीं बोलो. डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड द इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है. व्हाट इज द डिफरेंस? इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस, another one also increases, ठीक है. And in the inverse proportion, if one quantity increases, another one decreases. It's the opposite thing happening, right? So that for writing the inverse proportion, we have to write, for example, if I say A and B are inverse proportion, inversely proportional, ठीक है. So what will I write? How will I write? Because we have done this exercise, these questions before many times, so that is why I'm actually not going into the detail. I'm just writing it. What is the way of writing it? I'll write A बोलो इधर, एक मिनट, proportional का निशान, और उसके बाद 1 upon B, समझ आई? 1 upon B. This is how you write the inverse proportion. कैसे बेटा हंजिला, कैसे राइट करेंगे? How will you write it? A and inverse proportion के लिए कैसे लिखते हैं? Proportionality signs बोल सकते हो ना, proportionality sign आगे 1 upon B. So this is how you write it. Now if you have to convert it into an equation, this is the relation, you have to convert it into equation. You will write it like A is equals to K upon B. K upon B, ठीक है, समझ आ रही? Okay. So in that case, you will put the A's value, B's value, which is usually given here. In this case, X and Y values are given. Okay, let me remove this all and make you grasp this basic idea. What type of proportionality is given in this question? Inverse or direct? Inverse. Where it is written? It is already highlighted. It is already highlighted. You can see that. Y is inversely proportional to whatever given over here, right? So this is how I have written it. ऐसे ही मैंने इसको लिखा है, ठीक है. इसी तरह मैंने इसको लिखा है कि y is proportional to 1 upon root 1 plus x, ठीक है. Then what I converted into an equation. कैसे equation में convert कैसे किया है शफकत? Sir, y equal to k upon root 1 plus x. बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इसको हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है. यही चीज़ यहाँ पर भी हो गई. Then what I was supplied with the value of x and y, right? So I put the value of y and the value of x. I solved it. Then finally I find out the answer. This is k, not the complete answer. Now for the second part, it is asking me to find out the value of y. It is asking me to find the value of, बेटा बात तुम जवाब कोई भी नहीं दो. If I ask you, then you say, ठीक है. Please keep, I need to hear their voices, ठीक है. They are in a habit of whatever you do, whatever you say, just keep on repeating. That is not the way. Yes, आप लोग बताइए भाई. This is y. Okay, you have to find the value of y. You will use which relation? The second one, the highlighted one. This one. आवाज़ आ रही है? अब नहीं आ रही ना? यही तो बात है. ये जी, what is this? देखो रिलेशनशिप यहाँ पर है. y, इसमें y कितना है? y तो निकालना है. You have to find the value of y. k is how much? 6. हाँ, k is 6. शाबाश प्रीति. k is 6. ठीक है? k is 6. And what about x? x is given over here. That is 15. You replace these values just like this over here. See? k की जगह 6 लिखा, x की जगह 15 लिखा. Then I solved it. I found the value 1.5. Isn't it normal? It's not difficult. It's normal sort of question.
You can't say it's very easy, but you can't say, although in many cases you can say that this question is very very easy, right? जी बेटा जी डर हो गया? आगे पेपर में क्वेश्चन आएगा, हंजिला मुझे करके दिखाएंगे? समझ गए ये क्या करते हैं इसके अंदर? शुरू से बताइए एक रफ आइडिया। हाँ वन अपॉन करके लिखने का तरीका है। और डायरेक्ट में कैसे लिखते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी का निशान, हाँ आगे। यानी ये डायरेक्ट लिख देते हैं, ऐसे सीधे सीधे लिख देते हैं, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। हो सकता है इसी पेपर में, ये वाले पेपर में, लेकिन नेक्स्ट पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे हो, तो आपको याद होना चाहिए कि डिफरेंस है। अगर आपने उल्टा लिख दिया तो क्या होगा? वहीं पे गलत हो जाएगा। फिर आप पूरा भी सही भी सॉल्व करते तो आंसर तो आपका गलत ही निकलेगा। नहीं समझ आ रही बात? डायरेक्ट और इन्वर्स का फ़र्क याद रखो कि इन्वर्स को अपॉन करके लिखते हैं, राइट? ओके, गो अहेड हंजिला, गो अहेड। क्या करेंगे इसके बाद बेटा? क्या करेंगे उसके बाद? ये लिखना है। अब आगे ये के कहाँ से आ गया? किसके अगेंस्ट है? हाँ, उसकी जगह ये लिखा और ये प्रोपोर्शनैलिटी को एक ही लिख दिया। असल में तुम क्या कर रहे हो, क्या कहते हो इसको? इसको कहते हो कि आई एम कन्वर्टिंग इट इनटू एन इक्वेशन। तो इसको इक्वेशन, दिस इज अ रिलेशन बेसिकली, दिस इज एन इक्वेशन। देन व्हाट? नाउ प्लेस द वैल्यूज व्हिच आर गिवन इन द फर्स्ट पार्ट, ठीक है? यू गेट द वैल्यू ऑफ के, यू कीप द वैल्यू ऑफ के intact, and then move on again to this relationship, write down the relationship, and then again put the value. In this time use the value of k which you have found out, because k is going to be constant all the time, ठीक है? तो you put the value of k, you put the value of whatever the given things are there. It sometime it gives you the value and find the value of x. So don't worry, use the same relationship, just put the value of whatever is given and what is being asked, ठीक है? Find the value of whatever is being asked. That's done, I guess. Okay, ये बच्चा नहीं आया, ओके, इट्स ओके, ये आई लीव इट नाउ, ठीक है? आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेसन सो आई कैन शेयर इट। ओके, नाउ दिस इज द फैक्टराइजेशन टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द फॉर्मूला व्हिच यू सी इन दिस? क्या मेरा बेटा? नहीं बेटा, कॉमन नहीं है इसके अंदर। ये 9 है, टी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कहाँ से कॉमन आया? 9 कहाँ से कॉमन आया? 9 कहाँ से कॉमन आया? कॉमन नहीं है। सुनो मेरी बात। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर वन इज look for common. एक सेकेंड, look for common, just a second, let me write down. Look common. Is there anything common in this? No. These two expressions, is there any common thing? No, there is nothing in common with them. So move on to the next step. The next one is see how many terms. Wrote it down. ये लिखो अपने पास, क्योंकि अभी तक तुम लोगों को ये क्लियर नहीं हुआ। आपने 11th चैप्टर पूरा ख़त्म कर लिया है मेरे साथ कहने को। तो see how many terms, ठीक है? 2 terms और 3 terms. If there are 2 terms, check whether you can write the formula in the form box square minus box square. Remember that this minus is very important. There should be a minus in between the 2 square terms. So whether you go for this part, ठीक है? The third, if there are 3 terms, there are 2 more ways in which you can factorize. There are 2 more ways in which you can by which you can factorize, ठीक है? What are those? First of all, check whether these terms are, let me write. I'm not going to the detail of that. That will become a little more detail, but let me give you some basic idea. कि check whether you can complete it with completing square or whether you can go for the middle term break. These are usually the most 2 common steps of solving the 3 terms, ठीक है? Either it will be solved by completing square, either it will be solved by middle term break. Both of them are being done with you, but no problem. If some question arises, I'll give you the explanation of that. This time you can see that there are 2 terms over here in the question. So check whether you can write them the whole square. First of all, draw a box
square minus again a Brock's square. ठीक है, check whether you can write this 9t square over here. You need to be converting into something. Yes, it will be 3t's whole square. ठीक है, and this will be what? u's whole square. है ना, है ना, लिख सकते हो ना बेटा, जैसे 3t का होल स्क्वायर लिखा माइनस u का स्क्वायर. तुम्हें पता है कि अगर इसका रिवर्स करोगे तो यू विल गोइंग टू गेट दिस टर्म, ये दोबारा वापस आ जाएगा. समझ आ रहा है बेटा? ठीक है, तो ये देखना है. एक बार फिर से देख लो, फिर से देखो, फिर से ध्यान से देखो, समझो इसको, एक बार बार देख के करो. मैं एक आध का सवाल तुमको अभी दूंगा दोबारा करने के लिए. देखो 9t स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है. ठीक है, तुमने देखा दो टर्म है, तो इसको चेक करना होता है कि वेदर इट इज़ डब्बा स्क्वायर माइनस डब्बा स्क्वायर. आई यूजुअली कॉल इट डब्बा फॉर द ईज, फॉर द वर्ड के ईजी है तो आप समझ में आएगा. एक डब्बे का स्क्वायर माइनस दूसरे डब्बे का स्क्वायर. ठीक है, तो इन दिस डब्बा व्हाट विल यू आर गोइंग टू राइट? यू सी दैट दिस कैन बी रिटन एज 3t's होल स्क्वायर एंड दिस कैन बी रिटन एज यूज स्क्वायर. राइट, ठीक है. देन व्हाट? You know that if these two are dabbas, for example this is x and this is y, you can write it like x minus y and x plus y. This is how it opens up. ठीक है, तो ये है. इसका क्या बनेगा बोलो? इट विल बी, द आंसर विल बी. एक सेकंड बेटा, आप बताइए. आप बोल नहीं रहे ना कुछ भी, इसलिए आपको तंग कर रहा हूँ. आप बोलेंगे ना साथ में एक्टिव माइंड के साथ. जी बेटे, कैसे करना आता है आपको? ये नहीं आता तो आप सीख लिया. आपने क्या किया? मैंने यहाँ पर आपने ये देखा x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर लिखा था, उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? x माइनस वाई और x प्लस वाई. ये उस ज़माने की बात है जब आप नहीं देख रहे होते थे. अब आप देख रहे हैं तो देख लें उसको जरूर. x माइनस वाई और x प्लस वाई दो में टूट जाता है. तो अब इसका क्या हो जाएगा? ये कैसे बनेगा बोलो? माइनस u है बेटा, ये u है. 3t माइनस u और 3t प्लस u. समझ आई? 3t माइनस यू. प्रीति अब आवाज़ नहीं आनी चाहिए बेटा. जब किसी से स्पेसिफिकली बात हो रही है तो मैं उसी को बोल लेते. आप अपना जीनियसपन बाद में दिखाएं, जब मैं आपसे पूछूंगा फिर आप दिखाइएगा. ठीक है, बराए मेहरबानी इसका बहुत ख्याल कीजिएगा, वरना इस बात पे जवाब देने पे किसी को सज़ा मिले ये अच्छी बात नहीं है. इसीलिए मैंने धरानी को भी खामोश कराया कि बेटे चुप हो जाओ, तुम्हारी वजह से दूसरे कोई जवाब ही नहीं दे रहे होते. ठीक है भाई, यहाँ पर हो गया 3t माइनस यू 3t प्लस यू. सही है, ये समझ में आया? एक क्वेश्चन करके दिखाओ, फैक्टराइज. चलो ये करो, फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस. 7 by 2 power to the power 2, because this is the power 4 given over here, right? So break it into 2. What will what will you get? 6x minus 7y square and 6x plus 7y square. perfect. Is this okay? It's very simple sort of now. Okay, let me remove this question because this is not the part of this paper. I have chosen is just to revise different concepts. Most probably in the very next question, in the very next paper, this is going to come again. So what will you do? You will try to solve it then. Keep it in your knowledge. Okay. What about this? This is again a factorized question. First step is what? Always it's the first step. Look for common. This is the first thing. So check. देखो these type, this is 4 term question ना, तो usually there is common. It is, see these two, out of these two, 2 is common, right? So it will be, what will you get inside? C 2D, C minus 2D, not 4D, because when you get multiplied you need to get 4. ठीक है, तो 2 common आ गया. अच्छा, check which sign is coming out. It could be minus sign and T coming out. So it will be C minus 2D. Why not plus? Because outside it is minus. Look carefully. Look carefully, beta. Clarify your concept. These are the things which you have lost during the first time I was explaining it. Okay. Look. Look here. This is the minus sign now. Okay. So this minus is actually getting multiplied term here and here. Okay. And this P is also getting multiplied with all the terms. So when the minus is here, minus plus minus PC and minus plus 2PD. Okay? So if you put a plus over here, that is not going to form a minus here. When you multiply minus plus minus, it will not be a minus. Over here is a plus. So you need to put minus here. You need to put. Only in this way. One more thing which you need to remember. बेटा सीधे बैठिए और आप बराए मेहरबानी अगड़ाइयाँ लेते हुए नजर ना आइएगा, वरना आप आगे का सारा दिन माइकल के रूम में गुजारेंगे.
बिल्कुल मुझे सख्त नफरत है इसके अंदर। ये क्लास हो रही है और मुझे कभी देखा यार, मैं भी तो थका हुआ आता हूँ, मैं भी 16-16 घंटे काम कर रहा होता हूँ बेटा। 16 आवर्स मेरी चलती है। रात को जो लास्ट ट्यूशन में एंड करता हूँ 12:30 बजे रात को होती है तरावी के बाद। उस बच्ची का 4 घंटे का आगे पीछे का टाइम है, तो उसका रोज़ा खुल रहा होता है। 10-15 मिनट का वो बीच में ब्रेक भी लेती है कि यार 6:10 पे उसका रोज़ा खुलता है। चाहो तो जाके चेक कर लेना इंग्लैंड में कितने बजे रोज़ा खुलता है, 12:15 बजे। और उसके बाद सुबह फिर दोबारा बीच में सहरी के लिए उठते हैं, सबको पता है। फिर दोबारा सुबह 6 बजे फिर उठ के भागते हैं कि यहाँ 6:15 बजे नहीं 6:30 6:45 बजे की फिर दोबारा यहाँ आए। उसके बावजूद भी ऐसे तो अंगड़ाई लेते थे, आपने मुझे नहीं देखा होगा कि पहले बस सारा यूँ ही बैठे हुए खाली क्लास के अंदर। अरे बेटे ये देखिए, ओनली इन दिस वे दीज टू ब्रैकेट्स आर गोइंग टू बी द सेम। पूरा साल हो गया बेटे यहाँ जाते हुए। अपने आप को सही कर लीजिए, वरना नेक्स्ट ईयर में अगर मेरे साथ हिसाब किताब बनता है तो बहुत बुरा फंसेंगे। फिर आप याद रखिएगा, फिर आपको तो सीधा होना ही पड़ेगा। ये देखें 2c-2d - p(c-2d), समझ आई? ये दोनों देखो ब्रैकेट सेम हो गए बेटा, दीज टू ब्रैकेट्स आर सेम। तो अब आप इन दोनों को कॉमन निकालो, तो c-2d इज कॉमन इन वन ब्रैकेट एंड विल बी 2 - 3। दिस इज योर आंसर। ठीक है, गो अहेड सॉल्व इट। पावर बिल्कुल, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो गया। परफेक्ट। इसका क्या बनेगा बेटा? b की पावर 2 बन जाएगी। वेरी गुड। इस 8 का क्या होगा? 8 की पावर 1/3 रहेगा। नहीं बेटे, सुन नहीं होगा आपको, क्या होगा? नहीं। इसको तुम क्या करोगी, तुम छोटे नंबर को लेके, ये तो खैर याद भी हो जाता है काम करते करते, लेकिन ये छोटे से नंबर को लेके यू कीप ऑन मल्टीप्लाइंग, चेक व्हाट 8 कुड बी टर्न्ड इनटू। लाइक 8 could also be written as 2 × 2 × 2, 2 to the 4, 4 to the 8. Can it be written like that? And you can see that it can be written like 2 to the power 3 basically. You simply take your calculator like this and you keep on multiplying 2 together. 2 multiplied by 2 multiplied by 2. Check 2 to the power, see 2 to the power 3. Is this okay? ये समझ आया? क्या बताया मैंने हंजिला? छोटा नंबर लेके मल्टीप्लाई करो। अब जैसे मिसाल के तौर पे जल्दी से कैलकुलेटर से चेक करके बताओ कि 81 को क्या लिख सकते हो तुम। कैलकुलेटर चेक करो, ये किसकी पावर? हाँ, इसको वेरी गुड। देखो इसकी पावर 9 की पावर 2 भी लिख सकते हो बेटा। और सुनो, और 3 की पावर क्या लिख सकते हो? सोचो 3 की पावर क्या लिख सकते हो? 3 की पावर भी लिख सकते हो। चेक करो ना कैलकुलेटर से, 3 × 3 × 3 ऐसे करते जाओ, चेक करो कितनी मरतबा जाके 81 आता है। अरे 3 × 3 × 3 × 3 करती जाओ, चेक करो। 3 की पावर 4 4 मरतबा मल्टीप्लाई करो, 81 हो जाता है ना? तो 3 को 3 की पावर 4 भी लिख सकते हो। अब इट्स अप टू यू कि वहाँ पे कौन सा वाला आपको रिक्वायर्ड है। अगर जो रिक्वायर्ड हो उसके हिसाब से डाल दो। सही है। अब ये बच्ची पैर भी बहुत कम हिलाती है, बड़े ध्यान से सुन रही होती है, जवाब भी दे रही होती है और बहुत ज़्यादा शौक से अपने आंसर को वेरीफाई कराती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे सब हो जाए बेटा, ऐसे सब हो जाए, मेरी तो सबसे ज़्यादा यही ख्वाहिश है। अच्छा चलो, अब यहाँ पे क्या हो गया? 2 to the power 3 बना, मल्टीप्लाई बाय 1/3। आई समझ बात? ये 1/3 पहले का है और 2 की पावर 3 किसको लिखा? 8 को टर्न कर दिया हमने। अब ये 3 से 3 कैंसिल, ये बचा 2, तो इट्स द आंसर इज, ये तो कुछ नहीं है, 2 ये हो गया 2 to the power 1, a की पावर 1, b की पावर 2। ये आंसर समझ में आया? अब इसे सॉल्व करो। अब सारे ही इसके जो पैतरे थे सब सिखा दिए मैंने, अब तुम्हारा अटकना नहीं चाहिए। यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। और मुझे एक आंसर परफेक्ट अपनी ज़ात से खुद निकाल के दिखाओगे यार ये है, किसी का देखे बगैर, किसी का छापे बगैर, किसी से मशवरा किए बगैर, अपने दिमाग से करो। वही स्टेप्स है बेटा जो मैं सिखाए हैं। सबसे पहले पावर गिराने की कोशिश करो। पावर गिरेगी तो ये 16 की पावर भी 3/4 हो जाएगी और x की पावर 16 भी 3/4, इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इन दोनों को काटो, ये तो कट रहे हैं। 16 को तुम क्या लिख सकते हो? सोचो, 2 की पावर 4 लिख सकते हो। हाँ, तो इसको 2 की पावर 4 करो। 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 मल्टीप्लाई बाय x की पावर, ये 4 से ये कटा 4, तो x की पावर कितना हो गया बेटा? x की पावर कितना बना? x की पावर कितनी बनी बेटा? ये 4 है, 12। समझ आई? 4 3 12 कर दिया। और इसका क्या सीन है? इसका 4 से 4 कटा 2 की पावर 3, वो कितना होता है? 2 की पावर 3। देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया बेटे, ठीक है? तो 2 की पावर 3 बचा। तो 2 की पावर 3 कितना होता है बेटा? 2 to the 4, 4 to the 8। कैलकुलेटर से भी करके देख सकती हूँ। 2 की पावर 3 8 बनता है, तो 8 x की पावर 12 इज द आंसर। फिर से करूँ या किसी को समझ में नहीं आया? तो आ गया। ये छोटे छोटे आसान सवाल आते बेटा पेपर 1 के क्वेश्चन से।
P is equal to 9 है, yes. हाँ बेटा, आया समझ में? मैं दोबारा करवा देता हूँ, एक मिनट। अभी मना किया ना मैंने शफकत, अभी मैंने मना किया ना ये हरकत करने के लिए। शहरी के बाद क्रिकेट खेलने मत जाया करो बाहर, घर में रहा करो सुकून। जनाजा है कैसे जनाजा बेटे, किसका? उसकी बात है। तो क्या तदफीन तक गए थे? रात की 1:30 बजे तो वापसी में टाइम ही नहीं बचा, वो आते ही बस उठाया बैग निकल पड़े होंगे। फजर में जनाजा? नहीं, रात के ईशा के बाद 10:30 बजे जनाजा हुआ, तब उसके बाद हम निकले थे। अच्छा रात अच्छा की 1:30 बजे पहुंचे। चले भाई, ये वाला देख लीजिए।